ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਬੰਟੀ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, विभा, राकेश शर्मा, मोनिका, विपन शर्मा, भानु, विशांत मलिक, शिप्रा, वरदान, शुभम देवगन, विधुर, दीपांशु, अभि, तेजस्वी, तरन्नुम, रोहित ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭਨੋਟ, ਕਾਲੀਆ, ਸੰਦਲ ਅਤੇ ਲਖਨਪਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਦਿਰ, ਜੇਲ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਡਿਤ ਅਨੰਤ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਗਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ 6 ਜਨਵਰੀ 1942 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪੰਡਿਤ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਤਿਲਕਰਾਜ ਜੀ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ, ਦੀਪਕ ਜਲੰਧਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ BA ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਫੈਂਟਨਗੰਜ ਵਿਖੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਬੰਟੀ, ਵਿਭਾ ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵਨੀਤ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
अपनी इस रचना के माध्यम से हमें संसार की वास्तविकता का ज्ञान करवा रहे हैं कि जिस संसार के साथ आज हम इतना अधिक जुड़ चुके हैं, जिस संसार में आज हम इतना आसक्त हो चुके हैं, वो संसार वास्तव में है क्या? रहना नहीं, देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे बर जाना है। संत कबीर दास जी कह रहे हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस संसार को आज हम अपना कह रहे हैं, ये संसार तो पराया है। ये संसार हर एक जीवात्मा के लिए विदेश की तरह है। और इस संसार की हकीकत कैसी है? ये संसार वैसे ही है जैसे एक कागज के ऊपर पानी डाल दिया जाए तो जैसे वो गलकर नष्ट हो जाता है, ठीक ऐसे ही जब इंसान का जीवन, उसकी जीवन यात्रा संपन्न हो जाती है तो उसका भी जीवन ऐसे ही नाश को प्राप्त हो जाता है। इस संसार के अंदर कांटों की बाड़ी है, और ये कांटों की बाड़ी क्या है? इंसान के हृदय में बैठी हुई उसकी मोह आसक्ति। इसी मोह में उलझ उलझ मर जाना है, और इसी मोह के अंदर ही एक इंसान सारी जिंदगी उलझता रहता है और उसी में फंसकर एक दिन अपने प्राणों का त्याग कर देता है। यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे पर जाना है। इस संसार के अंदर तो विषय वासनाओं की अग्नि है, और इसी में ही एक व्यक्ति अपनी सारी जिंदगी को जलाता रहता है और अपने जीवन में सदैव वह दुखी रहता है, व्यथित रहता है, व्याकुल रहता है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, अमृत से पुत्र, अरे तुम तो अमृत की संतान हो, अमृत के समान पवित्र हो, अमृत के समान तुम पावन हो। उस ईश्वर के समान सारे गुणों को तुमने अपने जीवन में धारण किया हुआ है, परंतु फिर भी आज इंसान अपनी वास्तविकता को भूलकर इस संसार के विषय वासनाओं, मोह आसक्ति के बंधनों में बंधकर हमेशा शोकाकुल ही रहता है, वो व्यथित ही रहता है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मानव, तू जाग और जाग कर देख, ये संसार तेरा वास्तविक अपना घर नहीं है। तेरा अपना घर, तेरा स्वदेश तो वह है जहाँ पर वह ईश्वर का निवास है। हम वासी उस देश के, कबीर दास जी कहते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। हमारा अपना घर तो वो ईश्वर का घर है, वो परमात्मा का घर है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई गम नहीं है। गम मतलब दुख नहीं है। वहाँ पर हमेशा अगम के दीपक, आनंद के दीपक हमेशा जलते रहते हैं। ईश्वर के घर का पता ही हमारे वास्तविक घर का पता है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि हे मानव, इस संसार में तो चंद रोज का मेहमान है, और तेरे आने का लक्ष्य केवल जीवन और मृत्यु के चक्कर में उलझ उलझ कर अपने आप को समाप्त कर लेना नहीं है। तेरे जीवन का लक्ष्य तो उस गोविंद के चरणों की शरण को प्राप्त कर अपने जीवन को सफलता के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए तुझे यह जीवन मिला है। उस प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए तुझे यह जीवन मिला है। इसलिए भक्त ने हमेशा उस ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना की कि प्रभु, मैं जानता हूँ मेरा अंत समय एक ना एक दिन अवश्य आएगा, लेकिन उस अंत समय में भी मुझे यह संसार याद ना आए, मेरा चिंतन इस संसार की ओर ना जाए। मेरा चिंतन प्रभु
आपकी ओर जाए प्रभु, आपकी ओर जाए। इसी प्रार्थना को एक भक्त बड़ी ही सुंदर रचना से हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। आइए इस सुंदर रचना को हम व्याख्या सहित श्रवण करते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। भक्त यहाँ उस ईश्वर, उस परमात्मा के चरणों में प्रार्थना तो कर ही रहा है, परंतु इस प्रार्थना के साथ साथ वो हमें हमारे जीवन की वास्तविकता से भी परिचित करवा रहा है। और जीवन की वास्तविकता क्या है? यह दर्द फिर नहीं। यह जो शरीर है, आज जो हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का कारण है, हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है हमारा अपना शरीर। ये शरीर हमेशा स्थिर रहने वाला नहीं है। यह जो शरीर आज हमें मिला है, वो कुछ पलों के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों, महीनों, वर्षों के पश्चात हमारे हाथ से छूट ही जाएगा। इसलिए संत ब्रह्मानंद जी ने भी हमें समझाते हुए बड़ा सुंदर कहा। वो कहते हैं, 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चले का खेला। कोई आवे, ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। कोई आवे कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधारे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। संग चली ना एक अढ़ेला, सब चला चली का खेला। सुत नारी मात पित भाई, कोई अंत सहायक नाही। फिर क्यों भरता पाप का ढीला, सब चला चली का खेला। ये तो नश्वर है सब संसारा, कर ले भजन ईश का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। इस संसार में एक खेल चल रहा है, और ये खेल कौन सा है? चला चली का खेला। और ये चला चली का खेल क्या है? इस खेल में कोई चला गया, कोई जाने को तैयार खड़ा है। संत ब्रह्मानंद जी हमें समझा रहे हैं
तुम चाहे इस संसार में कितना कुछ भी अर्जित कर लो, कितनी भी भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त कर लो, कितने संसारिक रिश्ते नातों को अपने उस परिवार को बढ़ा लो, परंतु एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। इस संसार में हम 2 दिन के लिए आए हैं, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। आप कहेंगे बहन जी 2 दिन कैसे? हमें तो जीवन जीते हुए इतने साल हो चुके हैं, इतने महीने, इतने दिन हो चुके हैं, और आप कहते हैं 2 दिन का मिला है। बट तो हकीकत में हमारे शास्त्र धार्मिक ग्रंथों के आधार पर एक व्यक्ति के 2 ही दिन माने गए हैं। एक वो दिन जिस दिन वो जन्म लेता है, और एक वो दिन जिस दिन वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ये 2 दिन है। ये जो बीच का समय है, अंतराल, ये जीवन काल है, और इसी जीवन काल में हम क्या करते हैं वह महत्वपूर्ण है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, हे मानव, अपने जीवन काल की जो अवधि है उसे सुधार लो, क्योंकि एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है, ये निश्चित है। एक बार भगवान विष्णु जी अपनी सवारी गरुड़ के ऊपर बैठकर कैलाश पर्वत गए। गरुड़ जी को बाहर ही उन्होंने रोका और स्वयं भीतर चले गए। कैलाश के ऊपर वहीं बाहर बड़ा ही सुंदर वातावरण था। गरुड़ जी को बहुत आनंद आ रहा था उसे देखकर। वहीं पर एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया थी जो गरुड़ जी को बहुत ही प्रिय लग रही थी। इतने में ही यमराज वहां पर आए, और यमराज की दृष्टि भी उस चिड़िया पर गई। लेकिन उस चिड़िया को जब उन्होंने देखा तो बड़ी हैरानी से देखा। अब गरुड़ जी के मन में विचार आया, अब यमराज स्वयं तो भीतर चले गए हैं, लेकिन इनकी दृष्टि इस चिड़िया पर पड़ गई है। जब बाहर आएंगे तो इस चिड़िया के प्राण लेकर जाएंगे। गरुड़ जी इतनी प्यारी चिड़िया को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए गरुड़ जी ने क्या किया, उस चिड़िया को अपने पंजों में लिया और हजारों कोसों मील दूर एक जंगल में एक चट्टान पर उसे छोड़कर आ गए। और जब यमराज बाहर आए कैलाश पर्वत पर, तो उस समय गरुड़ जी ने यमराज से पूछा, यमराज, आपने उस चिड़िया को इतनी हैरानी से क्यों देखा था? तो गरुड़ जी को यमराज ने कहा, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे पता लग गया कि इस चिड़िया की मृत्यु अभी कुछ ही पलों के बाद यहाँ से हजारों कोसों मील दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर एक नाग के द्वारा होने वाली है। और मैं ये सोच ही रहा था, ये इतनी जल्दी ये चिड़िया वहां तक कैसे पहुंचेगी, लेकिन अब बाहर आकर देख रहा हूँ वो चिड़िया यहाँ पर नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो चिड़िया अपनी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसके वो अपने जीवन की भावी को प्राप्त हो चुकी है। गरुड़ जी समझ गए, इंसान कितनी मर्जी चतुराई कर ले, लेकिन इस मृत्यु से वो अपने जीवन में कभी बच नहीं सकता है, ये निश्चित है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, करता तू वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अगर तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तुम चाहते हो। क्या चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण हमसे, क्या करना है हमें? श्रीमद् भगवत गीता में वो कहते हैं, अपनी इच्छा बताते हुए अर्जुन के माध्यम से कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। हे अर्जुन, इस अनित्य जगत में सांसारिक क्षणिक सुख और दुखों से ऊपर उठकर तुम मेरा भजन करो, मेरा सुमिरन करो। और भक्त इस रहस्य को जानता है, इसलिए वो भगवान से ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि भगवान मेरी मृत्यु को टाल दो, नहीं। वो भगवान से क्या कर प्रार्थना कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं जानता हूँ मृत्यु अटल नियम है, आप इसे बदलेंगे नहीं, इसीलिए मैं आपसे ये नहीं कहता कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, मुझे अमर बना दीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो बस आपसे इतना मांगता हूँ कि जिस समय मेरे प्राण रूपी पक्षी इस देह रूपी पिंजर का त्याग करके इस पिंजरे को तोड़कर जब वो
उड़े तो उससे पहले प्रभु वो प्राण मेरे आपका चिंतन, आपका सुमिरन, आपका ध्यान करते हुए निकले। अब आप स्वयं ही सोचिए, अंत समय में प्रभु का ध्यान कैसे आएगा? सारा जीवन संसारिक भोगों में बिता दिया तो अंत में वो योग का मार्ग कैसे दिखेगा? सारी संसारा जीवन में माया माया थी तो अंत समय में वो मायापति कैसे याद आएगा? नहीं आएगा। उसे याद करने के लिए, वो अंत समय में याद आए, उसके लिए सारा जीवन अपने जीवन के लक्ष्य को जानकर उसकी ओर बढ़ने का ईमानदार प्रयास करना पड़ता है। इसलिए जानना होगा कि आज हमें यह जो जीवन मिला है, इस जीवन का रियल टारगेट क्या है, रियल मोटिव क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी पधारे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बंकिम जी से पूछा, बंकिम तुम ही बताओ जीवन का लक्ष्य क्या है? तो बंकिम चंद्र जी ने कहा, इस संसार में एक व्यक्ति आया है, समाज का भला करे, परिवार वालों के लिए अच्छा कार्य करे, यही जीवन का लक्ष्य है। बंकिम चंद्र से रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, नहीं बंकिम, समाज का भला करना, लोगों का कल्याण करना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य हैं, जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य है वो शक्ति जो हमारे अंदर बैठी है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। जीवन के रहते रहते उस परमात्मा को जानकर सारा जीवन उसकी भक्ति में एक व्यक्ति जीवन को व्यतीत करता है, यही जीवन का लक्ष्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए भक्तों, जीवन के लक्ष्य को जानकर सारा जीवन उसका चिंतन करना होता है, और जो समय उसके चिंतन में लग जाता है वही समय सार्थक है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, वो कहता है कि जीवन के अंदर यदि अपने घट में तुमने श्री राम को नहीं बसाया, उसका सुमिरन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो वो समय व्यर्थ है, वो समय व्यर्थ है, वो समय व्यर्थ है। जब प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आप इस पूरे भजन को यदि बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे तो इस पूरे भजन में भक्त ने एक विशेष अवस्था का वर्णन किया है। और वो अवस्था जानते हैं कौन सी है? वो अवस्था है मृत्यु की अवस्था। सबसे इंसान के जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था यदि कोई मानी गई है हमारे शास्त्र ग्रंथों के अनुसार, तो वो अंतिम अवस्था मृत्यु की अवस्था ही होती है। वो अवस्था जिसमें एक व्यक्ति के प्राण बस निकलने ही वाले होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है वो समय इंसान के जीवन का। क्योंकि अंत समय का ये जो टाइम पीरियड होता है, उसी के द्वारा निर्धारित होता है कि व्यक्ति, उस जीवात्मा को अगला शरीर कैसा प्राप्त होगा। आप श्रीमद् भगवत गीता को देखिए, भगवान श्री कृष्ण भी यही समझाते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज अत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्जुन,
अंत समय में मरता हुआ व्यक्ति वो जैसा चिंतन करता है, जैसा ध्यान करता है, वो अगली योनि, अगला शरीर वैसा ही प्राप्त कर लेता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। लेकिन अंत समय में कोई मेरा ध्यान कर लेता है तो वो अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाता है, वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ऋषि मार्कंडेय जी वो भी अपने ग्रंथ के अंदर अंतिम अवस्था के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, मरते हुए व्यक्ति के 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। पहला, यदि मरता हुआ व्यक्ति किसी सांसारिक वस्तु, किसी रिश्ते नाते पदार्थ की ओर उसका ध्यान चला जाता है तो इस ध्यान को आद्य ध्यान कहा गया है और इसके कारण उसे अधोगति की यानी निम्न योनियों की प्राप्ति होती है। दूसरे ध्यान के बारे में बताते हैं, जब कोई व्यक्ति मरता हुआ किसी के प्रति वैर भावना, प्रतिशोध की भावना को लेकर के मरता है तो इस ध्यान को रौद्र ध्यान कहते हैं और उसके कारण से उस ध्यान के कारण उसे नरक की प्राप्ति होती है। तीसरा, किसी व्यक्ति के भले के लिए, किसी के कामना, अच्छे विचार लेकर के जब कोई व्यक्ति मरता है तो इस ध्यान को धर्मीय ध्यान कहा गया है, लेकिन इस ध्यान के कारण भी उसे स्वर्ग मिलता है। फिर आगे वो मार्कंडेय जी कहते हैं, स्वर्ग भी कोई बहुत बड़ी अवस्था नहीं, पुण्य खत्म होने के बाद वापस 84 के बंधन में तो आना ही पड़ता है। फिर आगे वो कहते हैं, लेकिन मरता हुआ व्यक्ति संसार से, वस्तु पदार्थों से अपने ध्यान को हटाकर यदि वो ईश्वर की ओर ध्यान लगाकर अपने प्राणों को उसके चिंतन के साथ जोड़ देता है तो इस ध्यान को शुक्ल ध्यान कहा जाता है और इस ध्यान के साथ में जब वह व्यक्ति मरता है तो वो जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधता, वो तो मुक्त हो जाता है। अब आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण अवस्था है। इसलिए भक्त ने यहाँ पर यही प्रार्थना की कि जब कंठ प्राण आवे, जब मेरे प्राण है मेरे कंठ में आकर अटक जाए, बस मेरे प्राण निकलने के लिए तैयार हो तो मुझे क्या प्रभु इतनी कृपा करना, कोई रोग ना सतावे और यमदर्श ना दिखावे। उस समय मुझे कोई रोग ना हो प्रभु, मैं रोगों से मुक्त होकर इस संसार को छोड़कर जाऊं। लेकिन कौन से रोग? बहुत सारे विचार आ रहा होगा कि कुछ लोग तो अपने रोग के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होती हैं, लेकिन भक्त कह रहा है रोग ना हो। यहाँ किसी फिजिकल डिसीज की बात नहीं की जा रही है, शारीरिक रोग की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है मेंटल डिसीज की, मानसिक रोग की। शारीरिक रोग से तो एक ही जीवन खत्म होता है, एक ही जीवन नष्ट होता है, लेकिन मानसिक रोगों के कारण तो जन्म जन्मांतर खत्म हो जाते हैं। और ये मानसिक रोग कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम रोग के कारण वो विषय वासनाओं में उलझ जाता है, क्रोध रोग के कारण वो किसी का अहित करता है, लोभ रोग के कारण सांसारिक उपलब्धियों को एकत्रित करने में लग जाता है, मोह रोग के कारण सांसारिक आसक्तियों के बंधन में बंध जाता है और अहंकार रोग के कारण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझकर दूसरे को अपने से कमतर आंकने की सबसे बड़ी भूल करने लगता है। अब आप सोचिए, इतने इतने रोग हमारी आत्मा को लगे हों, हमारे मन को लगे हों, और हम सोचें अंत समय में हमें यमराज का दर्शन ना हो, यमदूत ना दिखे, वो देवदूत आए तो ऐसा होना असंभव है। यदि जीवन में देवदूतों का सामना करना चाहते हो, यमराज का सामना नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हमें मानसिक रोगों से मुक्त होना होगा। और वो कैसे होगा? इस बात को समझने के लिए चलिए चलते हैं मुंडकोपनिषद की ओर। मुंडकोपनिषद में हमारे ऋषि महर्षि एक बहुत सुंदर लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा गठीला वृक्ष है, उस वृक्ष की निचली डाल पर एक पंछी बैठा है और ऊपरी डाल पर एक पक्षी बैठा है। 2 पक्षी बैठे हैं, लेकिन दोनों पक्षियों में बड़ा अंतर है। ऊपरी डाल पर बैठा पक्षी वो निर्लेप है, केवल दृष्टा है, किसी चीज में
में आसक्त नहीं होता, लेकिन जो निचली डाल पर बैठा पक्षी है वो इधर उधर अलग अलग पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस पर होप करता है, यानी अलग अलग शाखाओं पर कूद फाद करके पहुंच जाता है। जब उसे कोई फल मिलता है तो उस फल को खाने के लिए आगे बढ़ता है। फल कड़वा होता है तो रोता है, मीठा होता है तो खुश होता है। ऋषि कहते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, ये पेड़ कुछ और नहीं, ये पेड़ हमारा जीवन वृक्ष है और इस पेड़ पर भी दो पक्षी बैठे हैं। पहला पक्षी हमारा मन और दूसरा पक्षी है हमारी आत्मा। आत्मा ऊपरी डाल पर है, किसी चीज में वो आसक्त नहीं होती, लेकिन ये मन ही है जो कभी संसार के विषय रसों रूपी और कर्म संस्कारों रूपी फलों की ओर आगे बढ़ता है। जीवन में सुख आते हैं तो आनंद मनाता है, जीवन में दुख आते हैं तो शोक मनाता है। और ऋषि कहते हैं, जब तक मन और आत्मा के बीच दूरी बनी रहेगी तब तक इंसान अपने जीवन में कभी मानसिक विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। जिस दिन इस मन ने इस प्रकाश स्वरूपी इस आत्मा का दर्शन कर लिया, अर्थात मन और आत्मा के बीच की दूरी खत्म हो गई, उस दिन ये मन समस्त प्रकार के मानसिक रोगों से मुक्त हो जाएगा और फिर वह यम का दर्शन नहीं करेगा। शास्त्र कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन के लक्ष्य को जानकर इस मन के धरातल से ऊपर उठकर आत्मा का दर्शन किया, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके इसके निरंतर ध्यान के मार्ग में आगे बढ़े, वो संसारिक विकारों से मुक्त हो गए। उन्होंने अपने जीवन को सफल कर लिया, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। परंतु ये आत्मज्ञान क्या है? ये आत्मज्ञान हमें मिलेगा कैसे? कौन है जो हमें इस आत्मा का ज्ञान करवाएगा? इसके विषय में बताते हुए आगे भक्त क्या कह रहा है, आइए श्रवण करते हैं। सुधि होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की। बड़े ध्यान से, बड़े गहरे विचार हैं इस भजन के। आप देखिए, आज हम इस शोक सभा में आए हैं ना, ये शोक सभा केवल मात्र शोक सभा ही नहीं होती। शोक सभा का अर्थ केवल मात्र इतना नहीं है कि दिवंगत आत्मा की तस्वीर के समक्ष कुछ पुष्प अर्पित कर दिए जाएं, कुछ समय के लिए दुखी होकर के बैठ जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें। नहीं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेड एंड फाउंडर परम पूजनीय सद्गुरु आशुतोष महाराज जी हमेशा कहा करते हैं, शोक सभा केवल मात्र शोक सभा नहीं होती, शोक सभा तो एक प्रेरणा सभा होती है, जिसमें दिवंगत आत्मा का आधार बनाकर संतों महापुरुषों के विचारों को जब एक व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, उससे प्रेरित होकर उसे प्रेरणा को अपने जीवन में धारण कर लेता है, यही है वास्तव में शोक सभा का वास्तविक औचित्य, यही है इसका वास्तविक अर्थ। और यहाँ भक्त क्या कह रहा है, प्रभु जिस समय मेरी मृत्यु का समय आए, मुझे शरीर के सुध बुध ना हो और मैं जाने के लिए, इस शरीर को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मेरी पूरी तैयारी हो।
आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, इस बात को समझेंगे, समझने के लिए एक प्रश्न हमारा सुनना और उस प्रश्न के बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। हम में से यहाँ पर लगभग जितने भी लोग बैठे हैं, आप हमें उत्तर मत देना, लेकिन अपनी आत्मा को जरूर उत्तर देना। क्या हमें मृत्यु से डर लगता है? क्या मौत से डर लगता है? अगर नहीं लगता तो हम अपने जीवन में इतनी सेफ्टीज को फॉलो नहीं करते, हर प्रकार से अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मौत से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमारी इस शरीर को छोड़कर जाने की अभी तैयारी नहीं है। याद कीजिए बचपन के उन दिनों को, हमारे स्कूल टाइम को, जब हमें हमारी टीचर जब होमवर्क करने के लिए दिया करती थी, और अगर वो होमवर्क हम लोग कर लेते थे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था, एक आत्मविश्वास आता था, और हमें स्कूल जाने में डर नहीं लगता था, क्योंकि हमें पता होता था हमारा होमवर्क कंप्लीट है। लेकिन किसी दिन बाय चांस अपने आलस के कारण या किसी और अन्य रीजन के कारण हमने होमवर्क नहीं किया होता था, तो स्कूल जाने में हमें बहुत डर लगता था। और स्कूल के टाइम पर हमारा कभी दांत में दर्द होता था, कभी पेट में दर्द होने लग जाता था, और कहते थे हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि डर है स्कूल जाएंगे, होमवर्क कंप्लीट नहीं है, टीचर जाकर पनिशमेंट देगी। हम स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। ठीक ऐसे ही जिस समय इस संसार रूपी घर में उस ईश्वर ने हमें भेजा था, तो हमारे लिए एक होमवर्क हमें करने के लिए दिया था। और वो होमवर्क जब हम करते नहीं हैं या हमने वो कंप्लीट नहीं किया होता, तो इस संसार को छोड़कर जाने में डर लगता है। लेकिन जब हम उस होमवर्क को कर लेंगे तो हमारे अंदर भी कबीरदास जी जैसा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसा कबीरदास जी ने कहा ना, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो कहते कबीरदास जी, जिस मरने से, जिस मृत्यु से ये सारा संसार डरता है ना, मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं जानता हूँ मृत्यु तो एक अवस्था है, और इसी अवस्था को प्राप्त करके ही तो मैं उस परमानंद, उस परम गति को प्राप्त कर सकता हूँ। जब तक मेरे जीवन में मृत्यु ही नहीं आएगी तो मैं उस आनंद की, परम आनंद की अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? हमें डर लगता है क्योंकि हमने हमारे जीवन में कबीरदास जी जैसा होमवर्क नहीं किया। हमने अपने शरीर को छोड़कर जाने की तैयारी नहीं की, इसलिए डरते हैं हम। अब तैयारी कैसे, किस प्रकार की तैयारी करनी है हमें? क्या कोई इसके लिए स्पेशल कोई हमें वस्तुएं इकट्ठी करनी है, कोई स्पेशल कपड़े लेकर आने हैं? क्या करना है हमें, कैसे तैयारी करनी है? इसके विषय में हमारे शास्त्र धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, कठोपनिषद कहता है इसके विषय में कि शरीर को छोड़कर जाने की एक ही तैयारी है कि एक व्यक्ति जीते जी उस मृत्युंजयी अवस्था को प्राप्त कर ले। मृत्युंजयी अवस्था अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी होगी। आप कहेंगे बहन जी, आप तो कुछ समय पहले कह रहे थे कि मृत्यु को जीता नहीं जा सकता। मृत्यु तो आती ही आती है, फिर मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? मृत्युंजयी, मृत्यु पर विजय, इसका अर्थ होता है उस अवस्था को प्राप्त करना जब एक जीवात्मा के इस संसार में बार बार आने और जाने का चक्र खत्म हो जाए। इस अवस्था को ही मृत्युंजयी अवस्था कहा गया है। और इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक बार एक जिज्ञासु हमारे सदगुरु आशुतोष महाराज जी के पास आया और उसने पूछा, महाराज जी क्या मृत्युंजयी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है? अगर प्राप्त किया जा सकता है तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो हमारी सदगुरु आशुतोष महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा, मृत्यु पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो पहले मृत्यु को जानना होगा कि मृत्यु होती क्या है। और संस्कृत के अंदर मृत्यु की एक डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन में कहा गया है पंच तत्वम गतः, अर्थात हमारा यह जो शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व का अपने अपने मुख्य तत्वों में विलीन हो जाना ही वास्तव में मृत्यु है। लेकिन इस
5 महाभूतों के शरीर में एक और तत्व भी होता है जिसे आत्म तत्व भी कहा गया, जिसके विषय में किसी भक्त ने बहुत अच्छा कहा, और 5 मिले 5 तत्व में छठा कहा जाए रे, ज्ञानी बूझे बूझ बुझारत जग जाने ना। आम संसारिक व्यक्ति इस छठे तत्व के बारे में विचार नहीं करता। जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वही इस पहेली को इस आत्म तत्व को अपने जीवन में सुलझा पाता है। जब एक ये जो आत्मा है हमारे शरीर में, ये अनश्वर है अर्थात अमर है, जो कभी नहीं मिटती, कभी नहीं समाप्त होती, कभी नहीं खत्म होती। ये शरीर हमें जो आज मिला है, ये शरीर तो हमारी आत्मा के वस्त्र हैं। जब ये शरीर पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो जैसे हम अपने पुराने वस्त्रों को बदल देते हैं, ठीक वैसे ही ये आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्रों को बदल देती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में इस शरीर के धरातल से ऊपर उठकर अपनी आत्मा में रमण करना सीख जाता है, इस आत्मा में स्थित हो जाता है, इसी को मृत्युंजय अवस्था कहा गया और इसे ही जीते जी मर जाने की अवस्था कहा गया। हमारे महापुरुषों ने भी कहा, नानक जीवत्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। ऐसे योग को प्राप्त करो कि आप जीते जी मर जाने की अवस्था को प्राप्त कर लो, इस आत्मा का दर्शन कर लो। यही वो योग है। दादू पहले मर रहो, पाछे मरे सब कोई। संत दादू दयाल जी कहते हैं, इस संसार में बाद में तो हर कोई मरता है, लेकिन इस संसार में विरला होती है वो आत्माएं जो जीते जी मर जाने की अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात आत्मा में रमण करना सीख लेती हैं, जो आत्मा का दर्शन कर लेती हैं, आत्मा का साक्षात्कार कर लेती हैं। और आत्मा का दर्शन होता कैसे है? कौन है जो इस आत्मा का दर्शन करवाता है? यही प्रश्न एक बार राजा जनक ने गुरु अष्टावक्र जी से किया। गुरुदेव, आत्मा का दर्शन कैसे होता है? गुरु अष्टावक्र ने कहा, आत्मा का दर्शन आत्मज्ञान के माध्यम से होता है। फिर राजा जनक ने पूछा, आत्मा का दर्शन करने के लिए ये आत्मज्ञान कौन प्रदान करता है? तो गुरु अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया कि आत्मा का ज्ञान एक समय का पूर्ण संत सतगुरु ही प्रदान किया करते हैं। तो उस समय राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है घोड़े के एक पागड़े में पैर रखकर दूसरे पागड़े में पैर रखने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में एक पूर्ण गुरु आत्मा का दर्शन करवा देते हैं। क्या आप भी मुझे इतने ही कम समय में आत्मा का दर्शन करवा सकते हैं? गुरु अष्टावक्र जी ने कहा, अवश्य। और उस समय गुरु अष्टावक्र जी ने राजा जनक के मस्तक पर हाथ रखा और उनके अंतःकरण में विराजमान इस आत्मा का दर्शन करवा दिया, इस आत्म ज्ञान को प्रदान करवा दिया। भक्तों, आप देखें, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ रखवाया जाता है। और इस गरुड़ पुराण को यदि आप बड़े ध्यान से पढ़ें और सुने तो इस गरुड़ पुराण में संपूर्ण वर्णन आता है जीव की गति के बारे में, उसके कर्मों के अनुसार कैसे कैसे उसकी यात्रा है, उसके कैसे कैसे परिणाम है और उसके कैसे कैसे फल हैं, उसका वर्णन गरुड़ पुराण में आता है। लेकिन इसी गरुड़ पुराण में ये भी वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन समस्त प्रकार के कर्म संस्कारों से मुक्त होकर कैसे उस परम पद पर पहुंच सकता है, और वो मार्ग गरुड़ पुराण में आत्मज्ञान का मार्ग ही दिखाया गया है। जिस समय एक व्यक्ति पूर्ण गुरु की कृपा से अपने अंतःकरण में आत्मा का दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो भक्तों, जिस समय वो मेडिटेशन में आत्मा का दर्शन करने के बाद, देखने के बाद ध्यान की अवस्था में उतरता है, तो वो अपने प्राणों को शरीर के 9 द्वारों से ऊपर उठाकर यहाँ 10वें द्वार पर केंद्रित कर लेता है। और इस अवस्था को उत्तरायण की अवस्था भी कहा जाता है। कहते हैं ना, पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को रोका था कि इसलिए ताकि वो अपने प्राणों को उत्तरायण में ही त्याग कर पाए। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के अयन की चर्चा आती
आती है, एक है दक्षिणायन, एक है उत्तरायण। ये किसी बाहरी तिथि का वर्णन नहीं है कि मकर संक्रांति से लेकर इतने दिनों तक, इतने समय तक उत्तरायण है और उसके पश्चात का समय दक्षिणायन है। नहीं, ये आंतरिक आध्यात्मिक रहस्य है और वो आध्यात्मिक रहस्य हमें बताता है कि जब पूर्ण गुरु की कृपा से आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और आत्मा का दर्शन करने के बाद जैसे आप ध्यान की अवस्था में गहरे उतरते हैं तो आपके प्राण उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं और इसका ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए जो प्राणों का त्याग है, वास्तव में यही उत्तरायण की मृत्यु मानी गई है, यही मुक्ति की मृत्यु मानी गई है। और जब व्यक्ति जीवन के रहते रहते जो आत्मा का दर्शन नहीं करते, भगवान को नहीं देखते और बिना देखे, बिना भक्ति किए इस संसार से यूं ही चले जाते हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु दक्षिणायन की मृत्यु कही गई है। इसीलिए भक्तों, हम भी यदि चाहते हैं कि हमारे भी प्राण जिस समय शरीर से निकले, हमारे शरीर को छोड़ने से पहले हमारी पूरी तैयारी हो, उस प्रभु के चरणों में हम शरण को प्राप्त करें, तो हमें भी हमारे जीवन में एक ऐसे ही पूर्ण गुरु की कृपा से ऐसे ही आत्मज्ञान की आवश्यकता है। और यदि भक्तों हम अपने जीवन के अंदर ऐसी प्रेरणा को प्राप्त करके आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो यही दिवंगत आत्मा के प्रति हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप देखिए, दिवंगत आत्मा श्री जगदीश चंद्र जी जब तक वो इस संसार में रहे, उन्होंने अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत देन है उनकी। लेकिन आप स्वयं देखें कैसी पुण्यात्मा है कि आज जाते जाते भी हमें कितने सुंदर विचार देकर जा रही है ये दिव्य आत्मा, कितनी सुंदर प्रेरणा देकर जा रही है ये दिव्य आत्मा, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाकर जा रही है। इसीलिए भक्तों, इस मुक्ति के मार्ग को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी वास्तव में ये दिवंगत आत्मा के प्रति हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आइए चलते चलते एक बार फिर से इन्हीं विचारों को श्रवण करते हैं। आत्मज्ञान के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा एड्रेस नोट कर सकते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, यहीं जालंधर सिटी में हमारा आश्रम है और उसका एड्रेस है हाउस नंबर 398 मास्टर मोता सिंह नगर। आप यहाँ पर कभी भी आकर आत्मा परमात्मा के विषय में चर्चा कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त एक बार फिर से दिवंगत आत्मा श्री जगदीश चंद्र जी अपनी संसारिक यात्रा को पूर्ण करते हुए प्रभु चरणों में जा विराजे हैं।
इसीलिए हम उनके लिए प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दिवंगत आत्मा को सदैव अपने चरणों की शरण प्रदान करते रहें, अपना कृपा हस्त उनके ऊपर हमेशा बना करके रखें। और साथ ही साथ यह दिवंगत आत्मा अपने पीछे शोक संतप्त परिजनों को छोड़ करके गई है, समस्त शर्मा परिवार को हम प्रभु के चरणों में उनके लिए भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन्हें दुख की घड़ियों से बाहर निकलने की शक्ति और सामर्थ्यता प्रदान करें और ये परिवार भी आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़कर अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें। तो आए भक्त प्रेमियों, हम भी हमारे जीवन के ऊपर चिंतन करें। हमारा यह जीवन तो पल पल मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे हर श्वास के साथ हम मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं। इसलिए जीवन के लक्ष्य को जानकर प्रभु भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें। और इसके विषय में प्रेरित करता हुआ भक्त क्या कह रहा है, आइए श्रवण करते हैं। पल पल जीवन बीता जाए, प्रभु को ले पहचान, श्वासों में प्रभु नाम बसा ले, ओ बंदे नादान।
अपनी श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। कुछ समय के लिए सभी अपने नेत्रों को मूंद लेंगे और सभी अपने नेत्रों को मूंदकर प्रभु के चरणों में दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब हम आगे का मंच संचालन श्रीमान बंशी दास जी को देना चाहेंगे मंडी फेंडरगंज से। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सच्ची दरबार की जय। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जगदीश चंद्र शर्मा जी को श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो गए। ये परिवार, शर्मा परिवार, स्वयं तो संस्कार उनके अंदर था ही। उन्होंने अपने पुत्र विकास शर्मा जी को और जो भी परिवार के सदस्य हैं, इन सबके अंदर ऐसा संस्कार भरा। और मंडी में तो हनुमान जी के साथ इस परिवार का बड़ा एक अलग से स्नेह है। मुझे पता नहीं था, कल मुझे पता चला उनके जाने का। प्रत्येक माता पिता उसकी इच्छा होती है कि हमारा जो पुत्र हो,
हमारी जो बनाई हुई परंपरा है, हमारे बनाए हुए जो संस्कार है, नियम है, उसका पालन करें। है तो यह शोक सभा, परंतु बहुत ऐसे शब्द और विचार के गोष्ठी ये होती है शोक सभा, जहाँ से जीवन पर्यंत हमारे जीवन के लिए शिक्षा भी मिलती है, अनुकरणीय भी है। अगर हम थोड़ा विचार करें तो जो हमारी संस्कृति है पंजाब की, बहुत ज्यादा भटक रही है। आप देखते होंगे लोग पंडितों के पास जाते हैं, महात्माओं के पास, हमारे पास भी आते हैं, कई जगह आते जाते हैं। मैं परेशान हूँ, हमारे घर में परेशानी है, कई तरह की दिक्कत वगैरह आती रहती है। आप किसी के पास भी जाएंगे, वो आपसे पूछेगा आप किसको मानते हो, आपका कुल देवता कौन है, आपका जठेरे कौन है। पीछे अभी अम्बाला में एक पिंड है खत्रियों का, 3 पिंड है एक साथ ही, तीनों में, पूरे पिंड में किसी को ये पता नहीं कि हमारे जठेरे कहाँ है, कौन है। बड़ी मुश्किल से हमने खोजते खोजते 3-4 साल में हम खोज पाए। पता चला ये पाकिस्तान से परिवार ये आया था। जगदीश चंद्र शर्मा जी भी पाकिस्तान से ही आए थे। 1945 में जन्म हुआ। उसके बाद युवावस्था में ही वो यहाँ जालंधर में आए। हमारे यहाँ मंडी में लगभग 40 वर्ष तक उन्होंने जगदीश चंद्र एंड सन्स के नाम से व्यापार किया। और जब वो गए तो ऐसा लग ही नहीं रहा है गए, क्योंकि इतना सरल और स्वभाव था उनका, और इतने सीधे, इतने सरल थे वो कि मंडी में भी न तो कहीं किसी के पास जाना, मंदिर में भी हमारे पास बहुत कम आते थे। विकास जी तो आते हैं, वो बहुत कम आते थे, लेकिन इतना सुंदर स्वभाव, इतना शांत संस्कार जो उन्होंने दिया था हनुमान जी के प्रति। चाहे रात के 11 बज जाए, विकास जी रात के 11 बजे, 11:30 भी बज जाए तो भी मेरे पास आ जाते हैं, बोले हनुमान जी के पास हाजिर लेनी है, आज मंगलवार है। तो ये हम सभी को, केवल एक के लिए नहीं, इस सभा में एक हम संदेश आपको देना चाहते हैं शर्मा जी के माध्यम से। पाकिस्तान से आने के बाद व्यापार भी बहुत अच्छा किया, परिवार को भी संभाला, पुत्र को भी आगे संस्कार दिया, और दे करके जितने भी परिवार के साथ बेटे बेटी परिवार आदि संबंध कुटुंबी जहाँ तक बने, कालिया परिवार में, अन्य परिवारों में, सभी के सभी फल फूल रहे हैं। और ये संस्कार हम सभी को ये शिक्षा भी लेनी चाहिए कि हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे जठेरे कौन है, हमारी परंपरा क्या है, हमारे पूर्वजों ने नियम क्या बनाया है। अगर वो हमें पता नहीं होगा तो आप चाहे दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, किसी ज्योतिषी के पास जाएं, किसी भी महात्मा के पास जाएं, आपके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 3-4 साल तक मैं परिवार को ढूंढता रहा, जठेरे गोंदी परिवार का। गोंदी 3 पिंड है साहा के पास में। 4 साल के बाद हमें जम्मू से पता चला कि ये लोग पाकिस्तान से जम्मू आए, रघुनाथ मंदिर के पास में, और वहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ है जहाँ पाकिस्तान से आए हुए लोगों का पता चलता है कि इनके कौन से जठेरे हैं। फिर मुझे पता चला सुकराला माता इनके जठेरे हैं। सुकराला माता हम लोग गए, और जब वहाँ गए तो माता की चौकी किसी देवी के ऊपर आ गई, और जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, हमारे साथ 10-15 लोग थे पिंड के, तो वहाँ अपने आप जब सवारी आई तो वो सब बकना बोलना शुरू कर दी, मेरा मंदिर वहाँ बनेगा साहा में, मैं इनकी कुलदेवी हूँ, और ये मुझे ढूंढते ढूंढते ये यहाँ आए हैं। आश्चर्य लगा मुझे भी, मैं पहली बार जीवन में वहाँ गया था। तो ये यथार्थ है, मेरे सामने की प्रत्यक्ष ही घटना है। इसलिए मैं एक संदेश भी आज ये देना चाहता हूँ इस शोक सभा के माध्यम से कि हमारी संस्कृति जो विकृति होती चली जा रही है, हम अपने परिवार, हम अपने जो पूर्वज, जो हमारे पिताजी ने, दादाजी ने जो हमारी परंपरा बनाई है, अगर हम अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो ये निश्चित है कि उस परंपरा का निर्वाह करना होगा। अन्यथा आपको पता है कि जब मुगलों का साम्राज्य भारत में हुआ तो होने के बाद उन्होंने डंडे के बल पर कितने लोगों को कन्वर्टेड किया, और न तो वो इधर के बचे और न उधर के बचे। ये संस्कृति पंजाब में बहुत ज्यादा हो रही है। मैं विशेष न कहता हुआ
शर्मा जी के लिए हनुमंत लाल जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा जगदीश चंद्र जी के लिए कि उनकी आत्मा को ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान दें। जो उन्होंने संस्कार, जो उन्होंने भक्ति, जो उन्होंने उपासना अपने जीवन में की, वो इनके आगे की परंपरा में विकास लिए और अन्य अन्य जो भी बच्चे इस परिवार में हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, इनको ऐसी शक्ति दें हनुमान जी कि ये परिवार इसी तरह धर्म कर्म करता रहे, व्यापार आदि इनका चलता रहे और इस परिवार में सुख शांति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से मंदिर की तरफ से, पंजाब संत समाज की तरफ से जगदीश चंद्र शर्मा जी की को श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति शांति शांति। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ श्री जगदीश चंद्र जी के अंतिम शोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। हर इंसान जो इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ जन्म ਲੈਂਦਾ उस इंसान ਨੂੰ एक काल रूपी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने ਦੇ ਨਾਲ इस दुनिया को ले जाती है। लेकिन ਜਿਹੜਾ इंसान ਜਿਹੜਾ पुरानी इस समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ उस इंसान ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ जिथे परिवार ਨੂੰ बड़ी ਵੱਡੀ घाट ਪੈਂਦੀ है ਉੱਥੇ समाज ਨੂੰ भी बड़ी ਵੱਡੀ घाट ਪੈਂਦੀ है। ਬਾਊ ਜਗਦੀਸ਼ जी का ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही बड़ा प्यार सी और ਜਦੋਂ भी मंडी जाना पैरी हथ लाना और उन्होंने नेक ही सलाह देनी और जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने बड़ी मेहनत की, मेहनत भी ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ और इंसानियत के तौर पर उन्होंने समाज के कदम रखा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ इंसान ਅੱਜ ਦੇ दौर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत घट पैदा होंगे हैं। तो मैं उस परमपिता परमात्मा के यही अरदास करदा कि उस विछड़ी आत्मा को अपने चरणों के विच जगह देन और टिके परिवार को भाना वर्तन का बल दें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आज हम सब लोग एक ऐसे व्यक्तित्व को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो एक सही मायने में कर्मयोगी था। पूरा जीवन उन्होंने कर्म को अपनाया और आखिरी क्षण तक उन्होंने कर्म किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जिनकी कमी को शायद कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, जिसने हमेशा दूसरों की चिंताओं को, दूसरों के तनाव को, दूसरों की परेशानियों को अपने अंदर समेट लिया और अपने बारे में कभी किसी को पता नहीं लगने दिया। हमेशा मुस्कुराते रहना, सबसे हंस के मिलना, हर एक की खुशी में शामिल होना और हर एक के कष्ट में रहना, ये उनकी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। जब किसी को उनकी जरूरत होती थी वो उसके साथ होते थे। जब किसी को कोई परेशानी होती थी तो कहते थे, वाकई ये कहते थे, मैं हूँ ना, हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे उनके बच्चे हों, परिवार के सदस्य हों, कोई हो। ये उनका सेंटेंस मैं हूँ ना या हिम्मत नहीं हारना हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरे वो मौसा जी लगते थे। मेरे माता पिता काफ़ी जल्दी चले गए थे, तो मैंने एक बार उनको कहा कि मेरे माता पिता एक सपना देखते थे कि मैं उनके सपनों को पूरा करूं, तो वो तो आज है नहीं, तो आप मेरे पास आओ, मुझे खुशी होगी। वो दौड़े दौड़े मेरे पास बरेली आ गए। मेरे साथ बरेली में आके 3 दिन रहे और वहाँ रह के उन्होंने यहाँ तक कि मेरे अधिकारियों को भी उन्होंने अपना बना लिया। ऐसा एक इंसान। मैं दिल्ली में था, कई बार हमें दिल्ली में परेशानियाँ हुई। जब भी मैंने दिल्ली में उनको याद किया, 3-4 ऐसी घटनाएं मुझे याद हैं जो मेरे लिए दिल्ली तक दौड़े आए। ऐसा इंसान, ये तो मेरी कहानी है। मैं समझता हूँ उनके परिवार में उनके सभी जितने भी जान पहचान के लोग हैं, हर एक के पास उनको उनसे रिलेटेड एक कहानी होगी जो उनका प्यार दर्शाता है। समय की कमी है, अगर उनके बारे में कहना लगे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं प्रभु परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सारे परिवार को हिम्मत दे इस दुख को सहने की, और वो हमारे रोल मॉडल थे
और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। ओम शांति। व्यस्त विराजमान संत समाज, शोक सभा जो बुजुर्ग और बहनों बताओ, इस दमदा की परिभाषा ये दम आया आया ना आया। ये दम आता रहा, आदम आता रहा, ये भेद सारा दम का है। ये दम उस हमदम का है, ईश्वर का है, वाहिगुरु का है। यानी जी जन्म और मौत इंसान दे हाथ च, इंसान दे हाथ च इस धरती के आगे कहो जी कर्म कर जाता है, कहो जी खुशबू है। साढ़े दरम्यान श्री जगदीश चंद्र शर्मा जी ने रहे, लेकिन उन्होंने किए हुए कम्मा की खुशबू आज भी विद्यमान है। धर्मपरायण से उन्होंने अपने जीवन च प्यार ही पाया, प्यार ही बन गया। अज की हाजिरी इसे गल का सबूत है। जेड़ा भी उन्होंने संपर्क च आया उन्होंने होके रह गया। लाख चाहा मगर उठ ना सका, तेरी महफिल में एक बाहर आ गया। उन्होंने अपनी कल्पना खींच लिया सारे, कहते छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। जेड़ा भी व्यक्ति उन्हें संपर्क आया उन्होंने अपना बना लिया। यही कला से होना चाहिए। और उन्होंने यही संस्कार अपने सुपुत्र को देते विकास में पढ़ाया, लिखाया, नेक बनाया। उसे संस्कारा का सदका है कि परिवार का नाम है, स्थान है। जगदीश जी ने जान नाल शर्मा परिवार की एक पीढ़ी खत्म हो गई। 6 भरा से सब तो छोटे से दीपक जलंधरी जी उन्होंने भाई से, जिन्होंने एक शहर जलंधर की किताब लिखी है कि जलंधर का इतिहास लिखा है। और ये परिवार सारा मिलापड़ा परिवार है। हम दूसरी पीढ़ी शुरू हो गई है। विकास जी है, नवनीत जी है, बाबा जी है। जगदीश जी मैं कहूँ कि भाई बिल्कुल ठीक फरमाया। एक तो पहला बोलते हैं कि कर्म योगी से कर्म करते करते अंत समय तक, और सेवा कराने का भी मौका नहीं देता परिवार। पंच है, पंच में जो संत स्वभाव सेगा संता जे अंत पाया। जब अंत समय आवे, कोई रोग ना सतावे, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। शायद ऐसा ही मंजर से कि सेवा कराने का मौका नहीं देता। वैसे इस परिवार में मेरे पारिवारिक संबंध पिताश्री तो चले आ रहे, और बेटियां पिताश्री के देते हुए संस्कार की खुशबू ससुराल का ला रही। मैं ज़्यादा न कहता हूँ, अपने वालों भारतीय जनता पार्टी वालों श्रद्धा सुमन भेंट करता है। परम पिता परमात्मा की अरदास करता है, इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों च निवास बख्शना, परिवार को पाना बनने का बल बख्शना। जीड़ी फुलवाड़ी औलाद रूप से लगा गया सदा हरी भरी रहे, गुजरो जो बात से तो दुआ मांगते चलो, जिस पे खिले न फूल वो डालने। खुशी बढ़िया बढ़ती है, दुख बढ़िया करता है। तुसी अज सारे शर्मा परिवार का
ज्ञानी गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई,
प्रभु। बोलिए श्री हमें रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की।